and today onwards we will focus on another important topic. I hope screen is visible. Yes, sir. Okay. So we will focus on another important topic in Pamar Bhartiya or pediatrics. So that is about the vaccination. So vaccination is one of the important topic as far as daily OPD basis is concerned. We know that. So let us try to have some basic idea regarding this. Now, if you look into the history of vaccination, okay, vaccination, why vaccination is required? Now, basically, there is difference between two important terms. One is vaccination and another one is immunization. These two terms are actually different. Vaccination is administration of a vaccine to prevent a particular target disease. That is called as vaccination. If I am giving typhoid, so its only intention is to prevention from the typhoid fever. Or if I am giving BCG, the only intention is to prevent from the tuberculosis. Whereas immunization is a broad word. Immunization is broad word. Not only the vaccines, any other methods which are used to prevent the disease is called as immunization. That means any method which increase the body immunity. Okay, any procedure, any method, any diet, any food, okay, so which increase the body immunity, that is called as immunization. Okay, so we need to understand the difference between these two important words. However, immunization is one of the most cost effective way of reducing the disease burden. Suppose if you are able to increase the immunity of the person, then it is one of the best way to decrease the disease burden. Instead of going on treating every disease, if you are increasing the body immunity, so then it is one of the best way of decreasing the burden of the disease. That is what Ayurveda says, swasthasya swasthya rakshanam. That should be our first priority. Okay, treating the disease is a second priority. First priority is always prevention of the health. So to prevent the health of a person, what is required is we have to increase the immunization. Okay, so Ayurveda basically therefore believe in immunization, not in vaccination. Okay, the whole idea of Ayurveda is to increase the immunity of the person and not by increasing the immunity of the person by means of a vaccine. Of course, some of the methods which are almost all similar to vaccination was also found in Ayurveda, is also found in Ayurveda. Okay, so when we talk about Viruddha Harjanya Vyadis, so where he says Purvam Abhisamskaram शरीरस्या, मतलब अगर बॉडी में कोई भी डिसीज आने वाला कोई भी चीज़ है और उसकी वजह से डिसीज आने वाला है, मतलब हमारा देह का दोष और धातु का विरोध करने वाला, प्रत्यनिक विरोध करने वाला कोई भी चीज़ है, मतलब जो भी डाइट या कुछ भी लेने से बाद हमारा दोष और धातु को वो प्रकोपित करेगा, ऐसी सब्सटेंस को स्मॉल अमाउंट में धीरे धीरे आप लेने से उस नॉक्शियस एलिमेंट का अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगा. सो दिस इज पूर्वम अभिसंस्कारम शरीरस्य विच इज मेंशन्ड इन विरुद्धाहार कॉन्सेप्ट ऑफ चरक. वो तो अलग बात है, इट्स ओके. नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री ऑफ द वैक्सीनेशन. ओके, सो हम वैक्सीनेशन को पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदा. सो हिस्ट्री फर्स्ट. नाउ देयर इज अ बिग क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट पर्सन who invented the vaccines? Okay, who is the person who used cowpox extract to prevent the smallpox? सबसे पहले हमें जो पता है स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो एडवर्ड जर्नर ने किया, सो मे बी दैट इज द फर्स्ट वैक्सीन. दिस इज मोस्ट ऑफ अस बिलीव. ओके, सो हु इज द पर्सन हु यूज्ड cowpox extract, cowpox extract to prevent the smallpox? Yes, no doubt, everybody will say Edward Jenner, but actually it is not Edward Jenner. It is not Edward Jenner actually. Actually a farmer, एक जो किसान था, farmer by name Benjamin Jesty. Okay, by name Benjamin Jesty, 1736 to 1816. Benjamin Jesty, he used to use the cowpox extract inoculation to his son and wife when there is an outbreak of animal smallpox in their area. See, this is quite interesting. जब उसका जगह में जब कोई स्मॉल पॉक्स का एक आउटब्रेक हो गया, स्मॉल पॉक्स ह्यूमंस को नहीं आ रहा था, एनिमल्स को आ रहा था, तो उस टाइम ने वो किसान ने क्या किया, बेंजामिन जेस्टी ने अपना फैमिली को और अपना सन को बचाने के लिए उसने
वो जो स्मॉल पॉक्स का जो एक्सट्रैक्ट है एनिमल से निकाल करके अपना बच्चे को दे दिया. अब उसका आइडिया क्या था, वो क्या सोच रहा था, नो बडी नोस. ओके, सो ही हैज़ गिवन दैट. अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इसका वाइफ है, हिज वाइफ गेट ए सेकेंडरी इन्फेक्शन एंड विच इज़ लॉस्ट फॉर ए क्वाइट लॉन्ग टाइम. तो ये स्मॉल पॉक्स का जो मतलब वो जो आउटब्रेक में जो हुआ एनिमल स्मॉल पॉक्स, उसको जो है उसका वाइफ को देने के बाद उसका वाइफ को अनफॉर्चुनेटली दूसरा कोई कारण की वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ और बहुत समय तक शी विल बी सफरिंग. ओके, तो लोगों ने क्या सोचा कि ये कैसा कौन सा आदमी है कि जो है स्मॉल पॉक्स जो एनिमल में हुआ उसने अपना वाइफ को दे दिया, इसमें कोई दया तो है ही नहीं है, क्रूएल है ये. ठीक है, तो ये अनह्यूमन बिहेवियर है इसका. उसने जानबूझ करके जो है अपना वाइफ को डिसीज करवाया. तो इस तरीके से लोग सोचना शुरू कर दिए. ओके, लोग सोचना शुरू कर दिए. एंड दिस होल इंसिडेंट हैपेंड अबाउट 22 years बिफोर. एडवर्ड जर्नर ने वैक्सीन को डिस्कवर करने से 22 years पहले ये चीज़ हुआ था, ये इशू हुआ है. ओके, सो नाउ हु इन्वेंटेड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फॉर द फर्स्ट. अब सीधा बोलेंगे एडवर्ड जर्नर है या बेंजामिन जेस्टी है. ठीक है, सो लेट अस सी फर्दर. नाउ एडवर्ड जर्नर वाज ए डॉक्टर. एडवर्ड जर्नर वाज ए डॉक्टर एंड ही एक्चुअली वर्कड ऑन दिस. ठीक है, वो सीरियसली देखो, पहले वाला बेंजामिन जेस्टी है वो एक किसान था, उसको ज़्यादा नहीं कुछ नहीं पता था, वो ब्लाइंडली उसको क्या लगा पता नहीं, उसने शुरू कर दिया. उसने पहली बार दिया. बट एडवर्ड जर्नर बेसिकली एक डॉक्टर था, उसका साइंटिफिक नॉलेज था उसको, एंड ही वर्कड ऑन दिस एंड प्रेजेंटेड ए पेपर एट लैंडसेट. ही प्रेजेंटेड ए पेपर एट लैंडसेट बट वो रिजेक्ट हो गया. ओके, रिजेक्ट हो गया. उसके बाद 1796 में अगेन द पेपर वॉज रीपब्लिश्ड एंड फर्स्ट वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड. फर्स्ट वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड. Actually, Edward Jenner was actually influenced by Benjamin Justice's incidents. ओके, उसका जो प्रयोग से वो थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन था, इसको लीड मिल गया कि कैसे करना है बोल के. सो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि एडवर्ड जर्नर के साथ एक बैड इवेंट हुआ. वो व्हाट इज दैट, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ड जर्नर्स वाइफ एंड 2 sisters and even his son, they are died not by the smallpox. Unfortunately they were died by another vaccine preventable disorder, tuberculosis. ठीक है, वो ट्यूबरक्लोसिस से बेसिकली उसका फैमिली पूरा चला गया. बट सक्सेसफुली ही इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स बाई टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ए फार्मर. ठीक है, उससे इन्फ्लेमेशन मैंने इंस्पिरेशन लेके उसने किया उसको. सो हाउ द वैक्सीन एक्ट. So this is the history. Okay, so before, okay, the actual answer, the formal answer for the question who invented the first vaccine for the smallpox, no doubt it is Edward Jenner, but he is definitely inspired by Benjamin Justice. Okay, anyway, now how the vaccine acts. So we come to the basic topic now, how the vaccine acts. Now basically humans will have two types of immunity. One is innate immunity and another one is acquired immunity. Okay, now many times I told in the class also, innate immunity is just like the natural immunity. Okay, it's a natural immunity. And acquired immunity is one which is acquired later by different methods. By different, it may be by the vaccine or it may be by some other food or by habits or by your achara vichara etc. So anyway, we will see. Now for your better understanding, the innate immunity can be compared with the BSF, Border Security Force of India. ठीक है, and the adoptive or acquired immunity, so that can be compared by the Indian Army. ठीक है, एक होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और एक होता है इंडियन आर्मी. दोनों डिफरेंट है, आपको पता है. BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इंडियन आर्मी जो है वो एक अलग ही है. उसके एक रूल्स, मतलब एक बार आर्मी एंट्री हो गया तो उसके बाद कोई रूल्स फॉलो नहीं होता है, मतलब आर्मी का ही रूल है. ओके, दैट इज. सो नाउ अडैप्टिव इम्यूनिटी, दैट मीन्स बाद में एक्वायर्ड. अडैप्टिव इम्यूनिटी कैन बी कंपेयर्ड विद द इंडियन आर्मी. एंड द इनेट इम्यूनिटी
जो आपका नेचुरल इम्यूनिटी है, ठीक है, बाय बर्थ था, सो दैट इज नथिंग बट BSF लाइक. सो लेट अस सी द डिफरेंस नाउ. Now innate immunity, it will be always there in your body. Okay, always by birth it will be there in your body, just like BSF will be always there by protecting our borders. Okay, so protecting our borders, the BSF will be always there. But and another is innate immunity is antigen independent. So what is the meaning of antigen independent? एंटीजन कोई बॉडी के अंदर आए ना आए, बट इनेट इम्यूनिटी जो है हमेशा अपना काम करता है. फॉर एग्जांपल स्किन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर इनेट इम्यूनिटी. स्किन प्रिवेंट सो मेनी वायरसेस, सो मेनी बैक्टीरिया, सो मेनी unwanted substances entering inside the body. Similarly, HCl is present in our what you say stomach. HCl in the stomach, so that will also kill so many pathogens. Okay. Similarly, we have got so many secretions, mucus secretions and all. So they prevent so many. So they are all पार्ट ऑफ द इनेट इम्यूनिटी. उसको कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है ये करो बोल के, वो अपना काम करेगा. जस्ट लाइक BSF, ठीक है, BSF के लिए कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई सीमा पार से कोई गोली जब दागी गई उसके बाद ही जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है. वहाँ से कुछ युद्ध हो, वहाँ से कोई प्रतिक्रिया हो या ना हो, BSF विल बी ऑलवेज देयर. ठीक है, राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर, राउंड द क्लॉक, इट इज़ प्रोटेक्टिंग अवर बॉर्डर. इट विल नॉट लेट लूज एनी टाइम. Okay, so antigen it is antigen independent. Okay, antigen independent, it will not see who is coming. तो नेचुरल इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी है, वो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, वो ये नहीं देखेगा कि कौन उधर से आ रहा है, कौन जा रहा है. ठीक है, कोई भी अगर वो बॉर्डर को क्रॉस करके आएगा तो उसको पकड़ेगा या तो मारेगा. एंड इट विल नॉट सी हु इज कमिंग. इट मे बी द सिटीजन्स, इट मे बी द टेररिस्ट, इट मे बी द बर्ड्स, इट मे बी एनिमल्स, फार्मर्स. ओके, बॉर्डर आप क्रॉस करके आ रहे हैं जो भी है उसको तो वो रोकेगा इमीडिएटली. ओके, सो इट इज़ नॉट एंटीजन स्पेसिफिक, इट इज़ एंटीजन इंडिपेंडेंट. एंड बेस्ट एग्जांपल्स एज आई टोल्ड, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, देन म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, देन कम्स फैगोसाइट्स. जो हमारा बॉडी में जो है फैगोसाइट्स है, WBC, न्यूट्रोफिल, तो वो सब जो है ऐसा नहीं कि कोई भी बैक्टीरिया बाहर से आ गया तभी जो इनिशिएट होगा, ऐसा नहीं, वो तो हमेशा हमारा बॉडी में रहेगा. WBC, न्यूट्रोफिल, सो दे आर ऑलवेज. हाँ, ऑफकोर्स उसका नंबर बढ़ सकता है जब कोई एंटीजन आ गया, वो अलग बात है. अदरवाइज ऑल्सो ए नेचुरल टाइटर ऑफ दिस WBC एक्सेट्रा विल बी मेंटेन इन अवर बॉडी. ओके, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज इनेट इम्यूनिटी, प्रोटेक्टिंग योर बॉडी ऑल द टाइम इररेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन. अब कोई भी सिचुएशन हो वो हमारा आपका बॉडी को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इनेट इम्यूनिटी. वी हैव ब्लेस्ड विद सो मेनी इनेट इम्यूनिटी फैक्टर्स इन अवर बॉडी. ओके, now coming to the adaptive immunity. Adaptive का मतलब है कि it is just like an Indian army. See, Indian army will not work all the time. Indian army ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो वॉर फील्ड में रहेंगे, नहीं. So they are busy in their training and modification, अपने आप को स्किल डेवलप करने में वो बिजी रहते हैं. But when there is a need for the war, then only they will enter into the battlefield. Okay, otherwise they are busy in their own work. So it will not work always. Basically it will not work always. When happens, but when needed, it is very powerful and it will do the specific attack. ठीक है, तो ये क्या है कि the adaptive immunity is not like innate immunity. Okay, adaptive immunity जब चाहिए तब काम में आता है वो. Okay, if the situation demand, then it will come to the work. Just like our Navy, Air Force and this other army, Navy and as well as Air Force etc. So they are very specific. कहाँ पे हो रहा है एयर स्ट्राइक, कहाँ पे करना है, वहीं पे करके आ गया, बस दैट्स ऑल. ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अडॉप्टिव इम्यूनिटी. नाउ वैक्सीनेशन आल्सो कम्स अंडर द अडॉप्टिव इम्यूनिटी. ओके, वैक्सीनेशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द अडॉप्ट. हमने अडॉप्ट किया उसको, है ना, वैक्सीन दे करके. नाउ इट इज ऑलवेज एंटीजन डिपेंडेंट. इनेट इम्यूनिटी इज नॉट एंटीजन डिपेंडेंट, it is antigen independent, whereas adaptive immunity is antigen dependent. The reason is it never attack any body parts other than the enemy. That means innate adaptive immunity जब stimulate होगा तो वो हमेशा बैक्टीरिया को ही मारेगा, हमेशा वो बैक्टीरिया को ही मारेगा. It will not attack any of the other body cells. Any of the other body cells. Autoimmune disorders वो एक अलग चीज़ है. Otherwise
it will not attack any of the body cells. That will typically, it is very focused, specific. Okay, therefore it is called as antigen dependent. जो एंटीजन आया उसके अगेंस्ट उसका काम होगा. Okay, so it is always antigen dependent and it never attack any of the other body structures. Okay, and one more thing is it also helps the BSF to identify the exact enemy. दूसरा क्या है कि that means adaptive immunity also helps to the innate immunity. innate immunity को थोड़ा वो help करता है कि कौन एक्चुअली एनिमी है, कौन एक्चुअली एनिमी नहीं है. सो मेनी टाइम्स BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो जब काम करता है, सो वो जो है वो एंटीजन इंडिपेंडेंट है ना, कि मतलब वो कोई भी आए तो उसको मार देते हैं. ठीक है. सो बट एडॉप्टिव इम्यूनिटी थोड़ा BSF को एक क्लू देता है कि ये हमारा आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ये एनिमी है, ये हमारा सिटीजन है. सो एडॉप्टिव इम्यूनिटी ट्राइड, दैट मीन्स बिकॉज इट इज एंटीजन डिपेंडेंट. एंटीजन डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल बॉडी का नॉर्मल सेल है, ठीक है, तो जिसमें कोई एंटीजन है ही नहीं है तो उसको ये टच नहीं करेगा, और इनेट इम्यूनिटी को भी बताएगा कि इसको टच नहीं करना है. दिस इज अवर ओन बॉडी सेल. ओके, एंड अनदर इज इन द इंडियन द एडॉप्टिव इम्यूनिटी there will be production of memory cells. There will be production of the memory cells and it learns so many things from a previous war. जैसा कि एक आर्मी है, आर्मी ने एक बैटल के बाद है ना वो बहुत सारा लेसन जो है वो सीख लेता है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान वार हो गया, इंडिया चाइना वार हो गया. नाउ दे नो व्हाट इज द टैक्सिस ऑफ पाकिस्तानी army, they know what is the taxes of China army, so they know that. So Indian army will prepare accordingly in future. इन फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं, उसका आर्मी पावर कितना है, उससे ज़्यादा आर्मी पावर हमारा होना चाहिए. तो इंडियन आर्मी विल लर्न और मॉडिफाई इटसेल्फ. सो दैट इज ऑल्सो द नेचर ऑफ द व्हाट यू से एडॉप्टिव इम्यूनिटी. इन द एडॉप्टिव इम्यूनिटी व्हाट हैपन्स, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ द मेमोरी सेल्स. बी सेल्स स्टिमुलेट होगा, दैट विल सी लेटर. देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ द मेमोरी सेल्स. सो इट लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द प्रीवियस वार्स. So there is formation of the plasma cells, there is formation of the memory cells, so that next time जब war होगा, next time कोई भी बैक्टीरिया आएगा, so we need not waste much energy fighting against that particular bacteria, because we are already sensitized for that. The body immune system is already sensitized for that, because एक बार it not only fight with the infection or antigen, it also forms the memory cells. ओके, एक फाइल बन जाता है तो वहाँ पे मेमोरी सेल्स होता है. तो अगली बार जब आएगा तो उसका सीवियरिटी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स है, वो तुरंत जाके उसको मार देंगे. नाउ एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स. द इनेट इम्यूनिटी इज ओनली वन एंड ओनली, द सोल वन एंड ओनली, whereas adaptive immunity is of two types. One is B cells and another one is T cells. Okay, adaptive immunity is of two types. One is B cell immunity and another one is T cell immunity. Now B cells immunity is basically called as a bone marrow, the cells present in the bone marrow. T cells are basically the bones, which इसका नाम क्यों B cells आ गया, because related to bone marrow. Okay, and T cell उसका नाम T cell इसलिए आ गया, this is related to thymus gland. Okay, now B cell and T cell, so these are the two forms of the adaptive immunity. And बाकी भी we have got the adaptive immunity cells है, B cell, T cell, natural killer cells बोल के एक cells है. So they are also the part of adaptive immunity. Okay, complement system बोल के है, complement system, so that is also the part of the adaptive immunity. But basically very important to is B cell and T cell. Okay, so this is how the immunity and basics of immunity. बाद में धीरे धीरे हमें एक एक चीज़ पता चलता जाएगा. Now we know what happens when a vaccine is given. जब आप कोई भी वैक्सीन आपको दिया जाता है, so actually what happens? See, we know that in our body many antigen presenting cells are there, like macrophages and lymphocytes, etc. ठीक है. What do you mean by antigen presenting cell? Antigen present cell, what is the meaning of antigen presenting cell? मान लो कोई भी एंटीजन आपको बॉडी के अंदर आ गया, पहले तो उस एंटीजन को पकड़े, ठीक है, वो कहीं स्प्रेड ना हो जाए, पहले उसको पकड़ो, पकड़ के रखो. ठीक है, इस तरीके से उस एंटीजन को पकड़ के रखने वाला जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. ठीक है. सो कौन कौन सा है बॉडी में ऐसी जो है सेल्स है जो WBC का पार्ट है. व्हाट इज दैट? मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है. तो ये सब क्या है कि जब भी कोई एंटीजन अंदर आया उसको पकड़ के रखा.
ये बात अलग है कि वो उस एंटीजन का अगेंस्ट लड़ पाया या ना लड़ पाया, उसके पास उतना कैपेसिटी है या नहीं, ये बात अलग है, बट वो उसको पकड़ के रखेगा। ओके, सो मतलब सबसे पहले जो है जाके उससे टकराएगा, जो भी एंटीजन आए सबसे पहले जाके उससे टकराएगा। सो दे ऑलवेज इंटरेक्ट विद द एंटीजन। ओके, ये जो मैक्रोफेजेस है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, दे ऑलवेज ऑलवेज इंटरेक्ट विद द, सबसे पहले जो है वही आएगा वार में, ठीक है, एंटीजन। सो वेन एवर दे गेट अ एंटीजन, ओके, एंड टेक इट, तो वेन एवर दे टेक द गेट द एंटीजन, देन दे टेक इट टू द रीजनल लिम्फ नोड्स। वो क्या करेगा, सबसे पहले कोई भी एंटीजन आएगा उसको पकड़ के रखेगा, पकड़ के सीधा लिम्फ नोड तक लेके आएगा। अब लिम्फ नोड क्या हुआ, लिम्फ नोड सेंसिटाइज हो गया, दे टेक द रीजनल लिम्फ नोड। सपोज आपका अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है तो आप वहाँ का रीजनल लिम्फ नोड्स है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है या एक्सिलरी लिम्फ नोड्स है, तो वहाँ पोस्टर सर्वाइकल है, तो वहाँ तक वो उस एंटीजन को लेके आया। अब क्या होगा, इन द लिम्फ nodes, if B cells are able to identify this antigen, they start producing some of the immunoglobulins against this antibody, and the small amount of the IgG and IgA antibody is also produced. I will explain it in detail. ठीक है, सी सपोज नेचुरली जब कोई वैक्सीन आपने दिया नहीं कोई पेशेंट को, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, नॉर्मली कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ, तो सबसे पहले कौन जाएगा, यही मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट जाएंगे। मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स ये दोनों किसका पार्ट है, टी लिम्फोसाइट्स का पार्ट है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स है, ये सबसे पहले जाने वाला हमारा लोकल पुलिस है, लोकल पुलिस है। तो आर्मी वगैरह बाद में आएगा, पहले लोकल पुलिस है। लोकल पुलिस कौन है कि लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस, जो भी हुआ तो वो जाके उसको पकड़ के लाया, और उसके बाद क्या हुआ, उसको लिम्फ नोड को ला के दे दिया, ठीक है। अब लिम्फ नोड सोच रहा है कि इसका जो कैपेसिटी क्या है, इस एंटीजन का कैपेसिटी क्या है और इसको टैकल कैसे करना है, एंड अकॉर्डिंगली नाउ द लिम्फ नोड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मतलब वो क्या करता है, लिम्फ नोड इज अ पार्ट ऑफ द टी सेल, रिमेंबर, लिम्फ नोड इज अ पार्ट ऑफ टी सेल, ठीक है, टी सेल का पार्ट है वो। तो जब लिम्फ नोड का आया, लिम्फ नोड उसके बाद बताएगा बी सेल को, ठीक है, देखो ऐसे ऐसा एनिमी आया है, इसका ये नेचर है, इसका इतना स्ट्रक्चर है, इसका ये स्ट्रेंथ है, ये इतना स्पीडली स्प्रेड हो रहा है, इसको क्या करना है, वो बी सेल को मैसेज भेजेगा। नाउ बी सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये तो पूरा रॉकेट है, ठीक है। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मेजर immunoglobulins which are produced from the B cell is the IgG, IgM, IgA, IgE, etc. depending upon the situation. Okay. So this is normally in a person. Suppose एक आदमी है जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, इसमें ये होने वाला है, सपोज आपने पहले ही वैक्सीनेशन दे दिया, you have already given the vaccination. Now what happens, the same process will takes place in 3 or 4 times स्पीड, ठीक है, क्योंकि आपने स्मॉल अमाउंट में वैक्सीन को बच्चे को ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। वो वैक्सीन में है क्या, वो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म ही है ना, बीसीजी का आप वैक्सीन देते हैं तो उसमें है क्या, बीसीजी का ही, ट्यूबरकुलर का जो सेल वॉल है उसका ही एक प्रोटीन है जो एक एंटीजन है, उसी को आप डाइल्यूट करके प्यूरिफाई करके दे रहे हो, प्यूरिफाइड प्रोटीन करके दे रहे हो। वो जब आपने वैक्सीन दे दिया तो वो क्या कर दिया, वो पहले ही जो है आपका टी सेल को स्टिमुलेट कर चुका है, स्मॉल अमाउंट में वो कर चुका है, और वो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लिम्फ नोड तक जा भी चुका है। जाने के बाद ये मैसेज टी सेल ने, सॉरी लिम्फ नोड ने इसको दे भी चुका है, किसको, बोन में बी सेल्स को, और बी सेल ने जो है उसका अगेंस्ट आईजीजी या आईजीएम ऑलरेडी प्रोड्यूस करके रखा है, प्लस मेमोरी सेल्स भी है। अब मान लो वो इन्फेक्शन दोबारा आपका बॉडी के अंदर आ गया, तो ये जो प्रोसेस है, जो नेचुरली अगर वैक्सीनेशन नहीं दिया है तो ये प्रोसेस चलेगा, मान लो 15 घंटा चाहिए या 1 दिन चाहिए। अगर वैक्सीनेशन आप ऑलरेडी दे चुके हैं, इट विल टेक जस्ट 1 or 2 hours, बिकॉज एवरीथिंग इज रेडी, रिलीज करना बाकी है। Okay, so this is how the vaccination will go into
हेल्प एंड दैट रिड्यूस द सीवियरिटी एंड उसको स्प्रेड करने से वो रोक लेता है. बट इफ द वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीजन is also recognized by the T lymphocyte, and it helps the B lymphocyte to migrate to the germinal center and to cause the germinal reaction, and now the B cell is converted into the plasma cell and produce a large number of IgG antibodies. This is what I explained in short. Okay, so after some days the plasma cells will die off. So but some of them will escape and hide up in the bone marrow meshes, and they keep on producing the constant production of IgG. So this is another important thing. हमें पता है कि प्लाज्मा सेल्स है, प्लाज्मा सेल से जो है मेमोरी सेल्स बनता है, बट एक बार प्लाज्मा सेल एक्चुअली बनने के बाद क्या होता है कि थोड़ा दिन वो रहेगा प्लाज्मा सेल्स, बट एक्चुअली सो इट विल गोइंग टू डाई ऑफ. ओके, बट फॉर्चुनेटली व्हाट हैपन्स इज जो प्लाज्मा सेल्स जो बनता है, ठीक है, ये टी सेल से ये बनने के बाद उसमें से कुछ सेल्स वो एस्केप होके बोन मैरो में जाके चिप जाता है या चुप जाता है, ठीक है, और वहाँ पे वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है, एंड दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द कांस्टेंट प्रोडक्शन ऑफ आईजीजी. देयरफॉर हम बोलते हैं कि ये आईजीजी ये सब बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है. इट्स ए बी सेल इम्यूनिटी. वी बेसिकली कॉल इट एज बी सेल इम्यूनिटी. बेसिकली वो टी सेल से प्रोड्यूस होता है, होने के बाद वो अपने एक टाइम है, वो टाइम तक वो जिंदा रहता है, then it will die. But by that time some of these cells, plasma cells, they through the blood they escape from the site and they go and get hide in the bone marrow. एक बार bone marrow में जाने के बाद सेफ है, and bone marrow में जो है उसका प्रोडक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है. So this is how actually the memory cells are produced and how they will proliferate. So when you administer any vaccine, we do not get the effect immediately. ये हमें पता होना चाहिए. कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि जहाँ पे वैक्सीन से काम नहीं होता है एंड वी हैव टू गो फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन बनने में टाइम लगता है, क्योंकि वैक्सीन आपने दे दिया, वो अंदर गया, उसको लिम्फोसाइट्स ने ले लिया और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बन गया, उसके बाद वो लिम्फ नोड तक आया, लिम्फ नोड ने उसको देखा, उसका प्रोलिफरेशन हुआ, उसके बाद उसको मैसेज भेजा आपका बोन मैरो को, और बोन मैरो और उसके बाद मेमोरी सेल्स चले गए बोन मैरो में. तो ये सब होने में टाइम लगेगा. ओके, सो व्हेन वी एडमिनिस्टर द वैक्सीन वी डू नॉट गेट द इफेक्ट इमीडिएटली. इट नीड्स सम टाइम टू रिएक्ट. इफ द वैक्सीन इज एबल टू स्टिमुलेट ओनली बी लिम्फोसाइट, ओके, सपोज इफ योर वैक्सीन इज directly able to stimulate the B lymphocytes, then there will be a release of only IgM antibodies. Now this is also very important things, which will stay in the blood for a limited time and there will be no production of the memory cells. See, हमेशा जब भी आप वैक्सीन देते हैं तो वो हमेशा टी सेल को ही स्टिमुलेट करता है, वो डायरेक्टली जाके बी लिम्फोसाइट्स को स्टिमुलेट नहीं करता है. मान लो कोई ऐसा वैक्सीन है जो बी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता है, टी लिम्फोसाइट से पहले बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है, तो इमिडिएटली जो है बी लिम्फोसाइट हो सकता है कि कुछ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करे. यूजुअली क्या प्रोड्यूस करते हैं वो? आईजीएम को प्रोड्यूस करता है. ओके, बट आईजीएम का लाइफ स्पैन ब्लड में बहुत कम है, ठीक है. एक बात ये है कि वो थोड़ा दिन के लिए रहेगा और उसके बाद चला जाएगा. दूसरा, अगर डायरेक्टली आपने बी लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस कर दिया तो मेमोरी सेल्स नहीं बनेगा. मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स आपको बनना है तो इसी रूट में जाना है उसको, टी लिम्फोसाइट, लिम्फ ग्लैंड, इसी रूट में जाना है, तभी जो है बनेगा. और दूसरा, आईजीजी अगर प्रोड्यूस करना है, आईजीएम, देखो कोई भी इन्फेक्शन में सबसे पहले एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होता है वो आईजीएम है, ठीक है, बट हमें जो प्रोडक्शन कंफर्म करता है वो हमेशा आईजीजी है. आईजीजी का प्रोडक्शन हमेशा लेट होता है, पहले जो है आईजीएम का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन में. So therefore, we want such vaccines which first stimulate the T lymphocyte and then it stimulate the B lymphocyte, है ना, कि शॉर्टकट में हमें नहीं जाना चाहिए. So those vaccines which are directly stimulating the B lymphocytes, they are actually not so good. And those vaccines which follow the rule T lymphocyte and then B lymphocyte, that is always good. So what I mean to say is to get a good response, एक अच्छा response आपको लाना है डिसीज़ के अगेंस्ट, एज वेल एज आपको बहुत बढ़िया से मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस कराना है, देन वी रिक्वायर ए वैक्सीन
we require such a vaccine which is able to stimulate the T lymphocyte first, followed by B lymphocyte. So this is the whole message. We require always such a vaccine which basically stimulates the T lymphocyte first, followed by B lymphocyte. If it is only B lymphocyte, it is not good. So always prefer such vaccines which stimulate the both cells. So when we give the polysaccharide vaccine, बहुत सारे टाइप का वैक्सीन है ना, कि we will discuss it later. Polysaccharide vaccines को हम देते हैं. So they are the one which is going to stimulate only the B cells. बहुत सारे polysaccharide vaccines हैं. Polysaccharide vaccines शायद टाइफाइड का वगैरह है. ओके, सो जितना भी हमारे पास polysaccharide वैक्सीन, ठीक है, polysaccharide vaccines है, they are all only stimulating the B cells, not the T cells. Therefore, none of the polysaccharide vaccines are considered as of best variety. वो एक बेस्ट वैरायटी में नहीं आता है वो, ठीक है. हाँ, बी लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करता है डायरेक्टली, ठीक है, बट मेमोरी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स ये सब बनता नहीं है. सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज ऑफ बेस्ट वैरायटी. सो दे डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड रेस्पॉन्स. इसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता है. And they not produce the memory cells also, and hence should not be given in children less than 2 years. So इसकी वजह से कोई भी जो है पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स को 2 साल से पहले आपको नहीं देना है, क्योंकि वो अच्छा रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता है. And also the marginal layer of the lymph node are also not well developed in children below 2 years of the age. See, polysaccharide vaccines should not be given before 2 years. आप वैक्सीनेशन का लिस्ट देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे वैक्सीन है कि गिवन ओनली आफ्टर 2 years, and most of them are polysaccharide vaccines, and they should not be given below 2 years. One is the response is less, ठीक है. हमें ऐसा चाहिए कि बचपन में ही जो है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में ही जो है अच्छे से लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट ये सब अच्छे से बने, उसके बाद बी लिम्फोसाइट बने, ऐसा वाला वैक्सीन चाहिए. नंबर 1. नंबर 2, दूसरा कि 2 साल से पहले बच्चों का जो लिम्फ नोड का जो आउटर मोस्ट लेयर है, लिम्फ नोड का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड नहीं है. इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड. सो इसकी वजह से जो डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं आता है, डिज़ायर्ड इफेक्ट आपको मिलता नहीं है. सो दीज आर द 2 or 3 रीजन्स वाई we will not prefer the polysaccharide vaccine. Polysaccharide vaccines only stimulate the B cells, not recommended below 2 years, and it is not much effective on the marginal layer of the lymph nodes. So this is some of the basics. Now as on we go on discussing about the cases, बहुत सारी चीज़ जो है अभी clear हो जाएगा. So when we look into the different cases, the things will be more and more clear, and all your doubts will be clarified. There are so many cases are there. Okay.